Hello. Yes, sir, you are audible. Sir, good Okay. afternoon. Mm. Okay. So right now we'll discuss about MPC 032, right? So MPC 032 is talking about human resource development. The course title is Human Resource Development, right? Hello. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay, the course title is Human Resource Development. There are four blocks. As you know that there are four blocks, right? Block one is talking about human resource planning, and block two is steps in human resource management, and block three is human resource law, and block four is importance of human resource planning. Okay, so there are four blocks, right? And each block has 4 unit. So as you know that this is a counseling sessions. So I request all of you. So you will study. Okay, prior sessions क्योंकि we cannot devote each and every topic, single specific topic to this, right? The more emphasis is your query. Okay, whatever the query, whatever the doubts you have, we can discuss with that. ठीक है, in this chapter. तो आप पढ़ के आइए बहुत अच्छे से. ठीक है, फिर भी आई विल गिव यू 45 minutes, half an hour, the brief about each unit, each topic, what is there, right? And you need to study. Yes, Niharika, you raise your hand. Yes, sir. Good morning. Good afternoon, sir. Sir, is this MA first year psychology class? This is the second year. Oh, okay. This is second year class. Sir, but the link is given for first year. Not this one. First year link is given. I think Monu sir, you have to join with Monu sir. The second session is with Monu sir, first year student. Okay. Okay, sir. Check the Monu sir link. Right. Any other doubts? Okay. So as I telling about the block one, block two, block four. So block one is human resource planning. There are 4 units. Block two, steps in human resource management. There is each block there is a 4 units. So we have a only each block 4 units, and we have only 2 hours, right, to ask or to discuss about the things, right, which is very less time. So therefore I request all of you, you just go uh, each and every aspect, right, study well. Today I will discuss definitely the each unit, what is the outline, what are the things are there, right? And next class onwards you study well, right? And I will also discuss. Then we can you can ask questions, and it will be better understanding from your perspective and my perspective, right? And it will help you to learn and understand better the concepts, right? Okay. So, and most of the content you maybe find out very repetitive in nature. Okay. And also few contents here also there are जिसको पहले आना चाहिए, जैसे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में बहुत सारी चीजें सीक्वेंस होती है. ठीक है, जैसे एचआर प्लानिंग होता है, देन जॉब प्रोफाइल, job analysis, then further you can go for a recruitment selections, right? But कुछ contents आगे पीछे भी हो सकता है, एंड रिपीटेटिव नेचर भी होगा आपको, तो कोई दिक्कत नहीं है. मैं आपको सही सीक्वेंस बता दूंगा, क्या एग्जैक्ट सीक्वेंस ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंदर हम फॉलो करते हैं. तो वो चीजें हैं, राइट. Now I will share the entire screen of mine, where you can see
the outline of the course, right? Hello. Now screen is visible. Yes, sir. Okay. Screen is visible to all of you. Okay. So unit one is assessment of human resource in organization and human resource planning. ठीक है, तो असेसमेंट पहले आ गई है, तो जनरली ठीक है, इसको भी हम इसको इंक्लूड करेंगे। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग पहले आना चाहिए, वो ठीक है। देन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जनरली ये यूनिट वन होना चाहिए, वो यूनिट टू होनी चाहिए, लेकिन यही मैं कह रहा था, करेक्ट सीक्वेंस इज फर्स्ट यू नीड टू स्टडी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, देन कम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, then here more details about human resource planning, as I said, right? So that we'll discuss. Then there are also short-term programs. Again, here the training has come, so it should be in the end, right? Now here the it has mentioned training, so no issue. We have to learn each and every aspect of human resource. Now, this one I want to tell about what is human resource management. Brief outline. Okay. Brief outline of human resource management, right? So, human resource is basically, you know that human resource is managing people, managing the employee, managing your human resource, right? And effective and efficient way so that you utilize your cost, okay, utilize your resources, and same time you increase effectiveness efficiency in the organizations, right? So human resource planning is to managing people, or the managing people effective and efficient way. In the other hand, I can say, so minimum cost maximum output, ठीक है, minimum cost maximum output, I can say. Another way I can say, look at increase effectiveness and efficiency. Similarly, increase effectiveness and productivity performance in the organization through human resource utilizations. ठीक है, क्योंकि जितने भी रिसोर्सेस हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशंस में, ह्यूमन रिसोर्स सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, राइट? देयरफॉर ह्यूमन रिसोर्स कॉल्ड एज ए ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, जैसे कैपिटल होता है, पैसा होता है दूसरों की, आपके पास पैसा है, आप अगर बैंक में रखेंगे तो पैसा क्या होता है, मल्टीपुल करता है जहाँ इन्वेस्ट करते हो। इसी तरह ह्यूमन रिसोर्स ऐसे कैपिटल है, उसको हमें इन्वेस्ट करना है, और उस टैलेंट को अगर सही तरीके से हम यूटिलाइज करें तो हम बहुत प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। ठीक है, प्रॉफिटेबल कैसे होगा, जब उनकी टैलेंट इफेक्टिव एफिशिएंटली यूटिलाइज होगा, ऑर्गेनाइजेशन में एंगेज्ड होगा, तभी हम उसको इफेक्टिवनेस कह सकते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस, दिस इज ऑल अबाउट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। Yes, this is the basic definitions, right? Hello, is it clear? Yes, sir. Any doubts so far? कोई डाउट है तो पूछिए। हेलो, एनी डाउट? Fine, sir. I think we can continue. ओके, नाउ नेक्स्ट इज हाउ डू यू डू दैट, है ना, हम इसको करें कैसे, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा होता नहीं है, जैसे मैंने बोला। ठीक है, बहुत केओस होता है, बहुत मैनेजमेंट सही नहीं होता है, बिकॉज ऑफ देयर लीडरशिप। ठीक है, वो कुछ नहीं है, लीडरशिप की वजह से होता है, या उस लीडर को समझ नहीं है, या अंडरस्टैंडिंग कम है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आते हैं। ठीक है, इसकी वजह से चैलेंजेस दे, रेदर देन फोकस ऑन द
focus on the manage different aspect of the management policy or work in specific task rather than they do micromanagement each and everything. तो जिसकी वजह से human behaviors are very complex, ठीक है, human beings are very complex in nature. तो कभी कभी वो चीजों को सही डायरेक्शंस में जाता नहीं है जहां गैप्स होती है, क्योंकि हर एम्प्लॉय का उसका एक्सपेक्टेशंस कुछ और है और एम्प्लॉयर एक्सपेक्टेशंस कुछ और है, ठीक है। तो दोनों की एक्सपेक्टेशन जो मैच नहीं करती है, देन देयर इज ए प्रॉब्लम, ठीक है। तो हर एम्प्लॉय क्या सोचता है, क्या एक्सपेक्ट करता है? एम्प्लॉय एक्सपेक्ट करता है जे मेरे को कम काम करना पड़े, मेरी जॉब सिक्योरिटी सही रहे और सैलरी ज्यादा मिले। हर एम्प्लॉय यही चाहता है, ठीक है, कि कम काम करना पड़े और ज्यादा सैलरी मिले, ठीक है। एम्प्लॉयर क्या चाहता है? एम्प्लॉयर ये चाहता है कि इनसे ज्यादा से ज्यादा काम कराऊं और कम सैलरी दूं, है ना? यही होता है कि नहीं? टेल मी, यस और नो? Yes, sir. तो ये दोनों की क्या है, मिसमैच हुआ कि नहीं, जिसकी वजह से देयर इज ए फ्रिक्शंस और जिसकी वजह से हमारी अंडरस्टैंडिंग होती नहीं है काम के लिए। क्योंकि हमें जो एम्प्लॉय को हायर किया है, क्या वो सेल्फ ड्रिवन है, सेल्फ सफिशिएंट है ना? और जैसे वाई थ्योरी ऑफ, हमने वाई थ्योरी पढ़ा था, क्या वो वाई एलिमेंट एम्प्लॉय है ऑर्गेनाइजेशंस में? देन ओनली ही विल फॉलो। क्या उनकी एक्सपेक्टेशंस हमने मैच किया? नहीं किया। तो जिसकी वजह से ना ऑर्गेनाइजेशंस को जो लीडर होता है उसको समझ में आता है, ना एम्प्लॉय समझता है, तो दोनों चोर सिपाही खेलते रहते हैं, ठीक है ना? तो इसी तरह चलता रहता है ऑर्गेनाइजेशंस में, जिसकी वजह से काम हो नहीं पाता, ठीक है। बहुत सारे काम ना ग्रो होता है सही टाइम पे, स्लो होता है, स्लो डाउन हो जाती है, तो मेनी चैलेंजेस कम इन ऑर्गेनाइजेशंस। तो आवर ऑब्जेक्टिव क्या है एज ए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और एज ए साइकोलॉजिस्ट? और हमारा ऑब्जेक्ट है टू इंक्रीज इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी in the organization, whether it is an individual, whether it is a group, whether it is an organization itself, ठीक है, एंड इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी, इनोवेशंस, इफेक्टिवनेस, ठीक है, इन 360 डिग्री, तब जाके हम उसका अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस, नो? Yes, sir. ठीक है, तो इसीलिए ह्यूमन रिसोर्स को हमें समझना है, पढ़ना है, क्योंकि आज के टाइम पे जो लोग जॉब भी कर रहे हैं मार्केट में, वो आधा अधूरा इंफॉर्मेशन है। जैसे आप लोगों ने मेरी बात सुनी, समझा या पढ़ाई करी, तो आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हुआ। जिन लोगों ने पढ़ाई नहीं करी, समझा नहीं और उसको जॉब मिल गया, उसको उतना ही समझ में आएगा जितना वो खुद समझ पाएगा और कर पाएगा। अगर वो इंसान मैनेज करेगा ह्यूमन रिसोर्स, तो उसकी समझ के हिसाब से करेगा। यस और नो? यस और नो? Yes, sir. So that will be the become a problem in the management. इसीलिए chaos होता है मैनेजमेंट के अंदर, इसीलिए पॉलिटिक्स होती है मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है। इसीलिए सेम प्रॉब्लम is there in the management, still people never understand why this problem is happening, how they will manage, right? They never understand the problem, real problem in the challenge management, right? So therefore, as a human resource management or as a leader or as a management, we need to create a high work performance culture in the organization. Once I said high work performance culture means, that means जे आपकी ऑर्गेनाइजेशंस, राइट, ऐसा पॉलिसी लाए, ऐसा स्ट्रक्चर एंड डिजाइन एंड कल्चर इंप्लीमेंट करे ऑर्गेनाइजेशंस में, जहां ये इंश्योर किया जाए जे जब एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्म करेगा, बेटर परफॉर्म करेगा, उसको उनकी हिसाब से जो उनका जो रिवार्ड है, रिकॉग्निशन है, सैलरी है, रिसोर्सेस हैं, वो एज पर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, मैं ये नहीं कह रहा हूँ उसको ज्यादा दो, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको देना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एज पर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, ठीक है।
तो इंडस्ट्री की स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको फैसिलिटी, जब जब ऑर्गेनाइजेशन गोल और इंडिविजुअल गोल अलाइन विथ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, देन वी विल एंश्योर दैट जे हम ये कह रहे हैं कि आप अगर अच्छे काम करोगे तो ऑर्गेनाइजेशन इज देयर फॉर हियर, और ऑर्गेनाइजेशन ऑन द अदर हैंड विल से दैट हे लुक, यू आर एम्प्लॉय, we are providing you a better platform, better culture as per the industry standard. Like for example, मैं एक दे सकता हूँ, गूगल हो गया, टाटा हो गए, ऐसे बड़े बड़े कंपनी है जिनकी वर्क कल्चर अच्छी है। ठीक है, जैसे आप एक एयरलाइंस ले लो, विस्तारा, ठीक है, अभी थोड़ा प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन उनकी जो सर्विसेज हैं, क्वालिटी है, टाटा कल्चर आप देख लोगे, ठीक है, तो चाहे कस्टमर को हो चाहे एम्प्लॉय के लिए हो, ठीक है, तो वो इंश्योर करते हैं जो कि भाई आई विल हायर ए गुड क्वालिटी पीपल माय ऑर्गेनाइजेशन, जो उसका स्किल सेट अच्छी हो, नॉलेज हो, है ना, सब फिट हो, बिहेवियरल कॉम्पिटेंसी अच्छी हो। एक ये बात है। दूसरा, आई विल प्रोवाइड द बेस्ट सैलरी। ठीक है, तो बेस्ट स्किल, बेस्ट स्किल्स नॉलेज, है ना, एंड द बेटर पे पैकेज देन हायर आउटपुट। ठीक है, ये फिलोसॉफी है। तो इससे आउटकम अच्छा निकलेगा। ठीक है, और इससे इंश्योर होगा जो कि हम ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर अगर हमें ऐसे प्लेटफॉर्म क्रिएट करें जहां बेटर फैसिलिटी एज पर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, तो कोई भी एम्प्लॉई आपकी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाएगा नहीं, क्योंकि मार्केट में उतना है ही नहीं, कोई ना सैलरी है दे रहा है इंडस्ट्री के हिसाब से, जहां जाओगे सेम सैलरी, कल्चर इससे बढ़िया कहीं है नहीं, एफिलिएशन, जो भी नीड्स हैं, मास्लो की हायरार्की ले लो, हाइजीन मोटिवेशन फैक्टर ले लो, टू फैक्टर थ्योरी, उस हिसाब से जितने भी नीड्स हैं, उस नीड्स को असेंबल करके हमने ऐसे पॉलिसी ड्रिवन बनाई है, जिस पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन ऑर्गेनाइजेशंस में अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशंस वी आर वर्किंग, वी आर एम्फासिस ऑन टीम टीम बिल्डिंग, इंक्लूजन, है ना, जो भी बेस्ट पॉलिसी एवरीवेयर वी यूटिलाइज। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा टू इंक्रीज द बेटर परफॉर्मेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन, राइट, दैट विल इंक्रीज द, तो जहां हाई परफॉर्मेंस वर्क कल्चर वी आर क्रिएटिंग, वी एंश्योर दैट every individual goal will align with organization's goal. Once organization goals are achieved, the individual's goals are also achieved. ठीक है, तो हर किसी ने अपने गोल्स के लिए काम करेंगे कि नहीं, मोटिवेट होके काम करेंगे, तो उससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशंस की भी गोल अचीव हो जाएगी। ठीक है, तो आवर ऑब्जेक्टिव क्या है ना, ऑर्गेनाइजेशन गोल लेना है। ठीक है, तो इसी तरह ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना है। इज इट क्लियर नाउ एवरीवन, एनी डाउट हियर, एनी डाउट? No, sir. Clear. ठीक है, नाउ नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स फंक्शंस। जो ह्यूमन रिसोर्स का क्या क्या फंक्शंस हैं, क्या फंक्शंस हैं ना, देयर आर मल्टीपल फंक्शंस हैं ह्यूमन रिसोर्स में, एंड उसका उतना ही इम्पोर्टेंस है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो पहला जो एक्टिविटीज ह्यूमन रिसोर्स में, ये जो लिखा है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग हो गई पहला, फिर जॉब एनालिसिस हो गया, ठीक है, फिर रिक्रूटमेंट सिलेक्शन हो गई, फिर ट्रेनिंग हो गया, परफॉर्मेंस अप्रेजल हो गई, ठीक है, कंपनी लॉ हो गया, है ना, कंपनीज लॉ, लॉ लेबर लॉज एटसेट्रा, है ना, रूल, इंडस्ट्रियल रिलेशंस हो गई, एम्प्लॉय वेलफेयर हो गया, कंपनसेशन मैनेजमेंट हो गई, ठीक है, पेरोल मैनेजमेंट हो गया, ठीक है, और क्या है, ट्रेनिंग हो गई, ट्रेनिंग, एचआर एनालिटिक्स आज के टाइम पे आ चुका है। ठीक है, तो ये जो सारे ह्यूमन रिसोर्स फंक्शंस हैं, ठीक है, जिसको हमें ऑर्गेनाइज, टैलेंट एक्विजिशन हो गई, है ना, तो दीज आर द फंक्शन, ह्यूमन इंफॉर्मेशन सिस्टम, HRIS, है ना, तो दिस इज ऑल्सो, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट व्हिच नीड टू एस्टैब्लिश एंश्योर, ठीक है, सो दैट हमारी जो पॉलिसी रही, जो बिजनेस स्ट्रैटेजी है, और उसके साथ हम HR स्ट्रैटेजी को अलाइन करेंगे, और हम ट्राई टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ठीक है, तो ये सारे प्लानिंग फंक्शंस को इफेक्टिव तरीके से करेंगे। नाउ कम टू ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग ना, यूनिट 1 मैंने अभी बैकग्राउंड दे दिया।
अब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या है ना, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एक अनदर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, जहां अगर ये काम हम हो जाए तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग हर जगह में यूटिलाइज होगी, चाहे वो ट्रेनिंग हो, सिलेक्शन हो, रिक्रूटमेंट हो, परफॉर्मेंस अप्रेजल हो, हर जगह पे आपको हेल्प मिलेगा। इवन सक्सेशन प्लानिंग भी ह्यूमन रिसोर्स, कौन आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो अच्छा काम कर रहा है, को नहीं कर रहा है, वो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के थ्रू पता चलेगा। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग बेसिकली अगर बाय डेफिनेशन देखोगे, फाइंडिंग राइट काइंड ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, राइट एम्प्लॉय टू लुक एट हियर। ठीक है, there are definitions also available. Human resource planning is basically finding the right type of people at right time, right capability, right skills, and engage them at right place. ठीक है, तो वो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है, जहां हमें सही जगह पे ये प्लान करके राइट टाइम पे राइट स्किल्स, राइट टाइम और राइट कैपिटल, उसको हमें यूटिलाइज करना है। ठीक है, तो जनरली क्या होता है ऑर्गेनाइजेशंस में, कभी कभी हमारी जो एम्प्लॉय है काम ज़्यादा है, लोग शॉर्टेज हैं। ठीक है, बहुत सारे शॉर्टेज है, तो उस काम को करेगा कौन। ठीक है, तो इसलिए कभी कभी मल्टीटास्किंग होती है, फिर ओवरलोड होता है, स्ट्रेस होती है लोगों को। तो ये काम हम अगर प्लानिंग कर ले, जो जितना काम के हिसाब से हमारी एम्प्लॉयबिलिटी इन्वेंट्री है कि नहीं है। ठीक है, तो वो चीजें को एंश्योर करना है। ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हेलो। Yes, sir. तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंदर आपको इसी तरह प्लानिंग करनी है, जो फाइंडिंग राइट टाइप ऑफ पीपल। तो इसीलिए आपको शॉर्टेज सरप्लस प्लानिंग करनी है। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग अगर आप यहाँ पे देखोगे, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज एंटिसिपेट एंड रेस्पॉन्ड टू नीड ऑफ विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। राइट, तो ये है जो है हमें फाइंड करना है, कितने टैलेंटेड एम्प्लॉय है, कौन काम कर रहा है, कितना कर रहा है, ये सब चीजें आपको पता लग जाता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। इवन कौन कौन लीडरशिप, नेक्स्ट लेवल ऑफ लीडरशिप लेने के लिए तैयार है। ठीक है, तो वो चीजें भी पता चल जाता है। तो इससे क्या होता है ना, टैलेंट इन्वेंटरी हमें पता चल जाएगा, है ना, करेंट। देन फोरकास्ट कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, एक्शन प्लान, एंड उसको कंट्रोल एंड इवैल्यूएशन करके सही यूटिलाइजेशन हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है, ये स्ट्रैटेजिक बिजनेस के साथ अलाइंड होती है। स्ट्रैटेजिक बिजनेस जो है उसके साथ हम अलाइंड करते हैं इसको, कि कैसे हम उसको यूटिलाइज करें। ठीक है, देन देयर आर लेवल ऑफ प्लानिंग। आप अगर देखोगे यहाँ पे यूनिट 1 के अंदर डिफरेंट लेवल ऑफ प्लानिंग, जैसे स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, ऑपरेशनल प्लानिंग, टेक्टिकल प्लानिंग, ये सारे। ठीक है, तो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग जो है बड़े बड़े प्लानिंग होती है। ठीक है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग। ऑपरेशनल प्लानिंग और टेक्टिकल प्लानिंग जो शॉर्ट टर्म प्लानिंग है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म प्लानिंग जो अभी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस की आपकी प्लानिंग होती है, जिसको हमें ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में दो चीजें, सप्लाई फोरकास्ट एंड डिमांड फोरकास्ट, हमें प्लानिंग करनी होती है। ठीक है, तो उसी से हमें पता चलेगा टैलेंट इन्वेंट्री। टैलेंट इन्वेंट्री मतलब कितने लोग काम के हैं, कितने लोग काम के नहीं हैं, कौन काम कर रहा है, या शॉर्टेज है या सरप्लस है, ये सब हमें पता लग जाएगा। ठीक है, अब वो फोरकास्ट करने की, जो फोरकास्ट कैसे करें, डिमांड फोरकास्टिंग, सप्लाई, सप्लाई और डिमांड की फोरकास्ट करनी है। ठीक है, यही दो चीजें यहाँ पे बताइए कैसे फोरकास्ट करेंगे ना, एक्सटर्नल वर्कफोर्स। ठीक है, एक्सटर्नल वर्कफोर्स में हमें देखेंगे, एक्सटर्नल वर्कफोर्स मींस आउटसाइड जो एनवायरमेंट में, वो कितना इन्फ्लुएंस, अट्रिशन कितना हो रही है, रिक्रूटमेंट सिलेक्शंस क्या हो रही है, वो देखना है।
देन इंटरनल वर्कफोर्स लाइक सक्सेशन प्लानिंग, ठीक है। तो ये सारे इन्वेंटरी आपके ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर वो चीजें भी आपको देखना है, कहाँ पे आपको सप्लाई करना है, कहाँ कहाँ लोगों को लाना है, और लेबर मार्केट बाहर कितने लोग है अवेलेबल, स्किल्ड कितने हैं, सेमी स्किल्ड कितने हैं, ऑन स्किल्ड कितने हैं, ये लोगों को आइडेंटिफाई करनी है। जॉब मार्केट में अभी स्थिति क्या है, पॉलिटिकल सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर क्या है, तो इस हिसाब से मतलब एक्सटर्नल एनवायरमेंट एनालिसिस और इंटरनल एनवायरमेंट एनालिसिस, ये दोनों तरह की एनालिसिस करने के बाद हम सप्लाई फोरकास्ट में कहाँ कहाँ से लोग अवेलेबल है वो हमें देखना है, ठीक है। इंटरनल, और इसको कहते हैं इंटरनल फोरकास्टिंग, ठीक है। सप्लाई, इंटरनल डिमांड एंड सप्लाई हम देखेंगे। सिमिलरली डिमांड फोरकास्टिंग के लिए हमें अदर मेथड्स हैं, उसको भी हम लोग यूज करेंगे, जैसे डेल्फी टेक्निक हो गया, मैनेजरियल जजमेंट हो गई, ठीक है, रिग्रेशन मॉडल हो गया, देन रेशियो एनालिसिस हो गई। तो दीज आर द डिमांड फोरकास्ट, ठीक है। डिमांड, जैसे रेशियो एनालिसिस में कितने, अगर एक काम को करने के लिए कितने लोग चाहिए, कितने आवर्स कितने, तो उसी तरह टाइम आवर्स की कैलकुलेशन करके हम उतने ऑपरेशंस में लोग रख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको देता हूँ, एयरपोर्ट में लंबी लंबी क्यू लगते हैं, ठीक है। अगर हर काउंटर में आपको 5 से 10 मिनट लग रहा है, उसको अगर हमें इफेक्टिवनेस बनाना है तो कितने काउंटर, कितने लोगों को कितने टाइम देना है, वो इन्वेंटरी हमें अच्छी तरह एनालिसिस कर सकते हैं उसको। तो उसको, उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन दे सकते हैं इमीडिएटली, किसी का क्यू ना, ठीक है। तो इस तरह की हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंदर मोटा मोटी तौर पे ये करते हैं। इज इट क्लियर? समझ में आ गई? Yes, sir. Clear. ओके। नाउ नेक्स्ट जो है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसके अंदर ह्यूमन रिसोर्स जो मैंने अभी पहले बता दिया, ये चीजें आपका मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, हाउ इट इज बिजनेस के साथ अलाइंड है। तो ये चीजें आप देखोगे, जो ह्यूमन रिसोर्स के अंदर जो स्ट्रैटेजिक है ना, स्ट्रैटेजिक फिट, बहुत सारे थ्योरीज हैं जो ये स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स, हाँ, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में डिफरेंस है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो ट्रेडिशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट था पहले, आज स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज अलाइन विथ बिजनेस, ठीक है, बिजनेस के साथ अलाइंड है। और वो स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट में ज्यादा अकाउंटेबिलिटी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को है। अगर कहीं पे परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो ह्यूमन रिसोर्स की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो उनको ही करना है हर चीजें। तो इसमें अकाउंटेबिलिटी है हर एक एस्पेक्ट में, ठीक है। और हर एक चीजों को सही, जैसे ज्यादा फ्रीडम है, ऑटोनॉमी है। पहले सिर्फ क्लरिकल वर्क होता था ह्यूमन रिसोर्स, आज के टाइम पे डिसीजन मेकिंग है, ठीक है। और ह्यूमन रिसोर्स इज द अनदर इम्पोर्टेंट, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है, लेकिन स्टिल विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, विदाउट ह्यूमन बींग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कुछ हद तक मैनुअल वर्क कर लेगा, लेकिन जहाँ डिसीजन मेकिंग है, इम्प्लीमेंटेशन है, कस्टमर से सही से डील करना, तो वो सारे के लिए ह्यूमन रिसोर्स की कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट पड़ेगी, डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस होगा जहाँ पर, ठीक है। तो काफी हद तक मतलब ह्यूमन को रिप्लेस तो कर ही सकता है, लेकिन पूरी तरह नहीं, कम्प्लीटली नहीं, ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर आप यहाँ पे स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में बताया गया है, तो इसको आप पढ़ना, ठीक है। और इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन स्टाफ एंड स्ट्रक्चर, हाउ टू चेंज पीपल, क्योंकि स्टाफ स्ट्रक्चर को ट्रांसफॉर्मिंग करने के लिए तो यू हैव टू प्रोवाइड द ट्रेनिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग, गाइडेंस, राइट अंडरस्टैंडिंग एंड स्ट्रक्चर डिजाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो ये सारी चीजें इसके अंदर है। देन इसमें और भी बातें, इंटीग्रेटिंग ह्यूमन रिसोर्स इनटू स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, क्योंकि ये तभी होगा जब व्हाट इज योर विजन एंड मिशन, व्हाट इज द गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज द वैल्यू, ठीक है, व्हाट आर द
शॉर्ट एनालिसिस यू कैन डू, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी क्या है आपके ऑर्गेनाइजेशन, देन ओनली यू फॉर्मुलेट द स्ट्रैटेजी, देन स्ट्रैटेजिक इंटीग्रेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, आज की टाइम पे मैं मानता हूँ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अगर कहीं ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम्स हैं तो it is only solely responsible of the human resource. ठीक है, you are not understanding or your management has not given full power to the human resource management, or human resource management has not understand the things are not approached to the people. क्योंकि human behavior are very complex, we need to manage them, we need to engage them, same time motivate, increase job satisfaction, increase effectiveness, efficiency and productivity in the organization. ठीक है, पहले ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ओनली confined to the human resource management. Right now, human resource management is across to the organizations, right? So, fitting human resource practice into business strategy, when you align with your each and every aspect into the business, ठीक है, what are the business, that is you need to align that. ठीक है, तभी जाके वो ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिस का अच्छी तरीके से यूटिलाइजेशन हो सकता है। तो यूनिट 2 के अंदर कुल मिला के अगर मैं बात करूं, इट इज ओवरव्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड देयर अप्रोचेस, राइट, देयर एंड मोर एम्फोसिस ऑन द स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, तो एनी डाउट सो फार वी कैन डिस्कस, कोई डाउट है तो पूछिए, एनी डाउट? सर जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंडर ही जैसे आजकल सारे ऑर्गेनाइजेशंस में हमारा स्पेशल जैसे साइकोलॉजिकल हेल्थ या मेंटल हेल्थ ऑफ द एम्प्लॉयज के लिए कंसर्न्स होते हैं, तो सर ये भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मतलब जो हमारा सेक्शन है उसी में ही डील करेगा मतलब? हाँ, यस, वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में मेंटल हेल्थ आ गई, एम्प्लॉय मोटिवेशन आ गया, वो इसलिए आपका जो मेंटल हेल्थ क्यों हो रहा है, क्योंकि यू आर नॉट ए गुड, लीडरशिप आपकी अच्छी नहीं है, या स्ट्रक्चर डिजाइन आपने किया ही नहीं, या ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग ही नहीं किया आपने, ओवरबर्डन हो रहा है लोगों को, है ना, अचानक कहते हो और शाम को 4 बजे मीटिंग है, आ जाओ मीटिंग करना है, एम्प्लॉय को बिठा देते हो रात को 8 बजे 9 बजे तक। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ, यस। ठीक है ना, तो इसका मतलब आपने प्रॉपर प्लानिंग नहीं करनी है, सबकी टाइम का रेस्पेक्ट करना है, एम्प्लॉय को टाइम पे जाना चाहिए, टाइम पे आना चाहिए, ना ऑफिस का काम घर ले जाना चाहिए, ना घर का काम ऑफिस ले आना चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। ठीक है ना, तो ये हमें बहुत सही सिस्टमेटिकली काम करनी है। ठीक है, एम्प्लॉय को रेस्ट भी देना है, सो दैट रेस्ट बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ओवरबर्डन नहीं करना है, इंटेलेक्चुअल काम फिजिकल काम को डिवीजन करनी है, ठीक है, वर्क स्पेशलाइजेशन करनी है, डिपार्टमेंटल काम करनी है, क्रॉस फंक्शनल काम करनी है। ठीक है, तो ये सब चीजें, स्ट्रक्चर डिजाइन इंपॉर्टेंट है, लीडरशिप इंपॉर्टेंट है, राइट, कल्चर, सब पॉलिसी, ये सब चीजें है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एंड इसके बाद जॉब एनालिसिस जब होती है, तो हर एक का KRA डिफाइन होती है। KRA जब हो जाएगी देन परफॉर्मेंस अप्रीजल के साथ वो अलाइंड होगी, और परफॉर्मेंस अप्रीजल है तो आपका हर कोई, चाहे थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी तो है अपने लेवल पे काम पे, और आप 24 घंटा वो क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन निगरानी रखते हैं, आप मोबाइल फोन पे क्यों बात कर रहे हो। ठीक है, हम नहीं कर सकते, हमारी मतलब होना चाहिए काम हुआ कि नहीं, डेडलाइन पे पहले काम हुआ कि नहीं, व्हाट इज आवर ऑब्जेक्टिव, वो अचीव हुआ कि नहीं। अगर ऑर्गेनाइजेशन ने टारगेट किया इस साल 2 करोड़ रुपया प्रॉफिट कमाना है, वो 2 करोड़ रुपया प्रॉफिट आया कि नहीं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। अगर प्रॉफिट है तो हमें क्या करना है बताओ। तो बहुत सारे यूरोपियन कल्चर, हमें वहाँ पे तो बात होती है जो हफ्ते में 3 दिन काम करना चाहिए एम्प्लॉय को, या 4 दिन, 3 दिन छुट्टी होनी चाहिए, रेस्ट देनी चाहिए। ठीक है, वीकली काम होती है, उनका स्ट्रक्चर है, तो इसीलिए क्योंकि दे मोटिवेट एम्प्लॉय, दे इनोवेशन चाहिए। आप कोई स्ट्रेस में है,
है ना, और लाला की ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, स्ट्रेस में है, वो क्या क्या इनोवेशन लाएगा? वो रोज आएगा क्या मेरे नौकरी कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मेरे को सैलरी आ रहा है, बस दैट्स ऑल, क्योंकि मेरे को घर पालना है। तो इनोवेशन के लिए वो सोचेगा ही नहीं, इनिशिएटिव नहीं लेगा। आप लाला जो बताएगा वही करेगा, और लाला की दिमाग, एक बंदे की दिमाग है, उससे क्या होगा? जब कलेक्टिव लोगों की इंटेलिजेंस यूटिलाइज होगा, तब जाके हम उसको यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। हाँ जी सर। इसके अलावा आपको और थोड़ा ब्रीफ दे देता हूँ। ये पीपल डायमेंशन इन ह्यूमन रिसोर्स, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, तो इसी तरह शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म प्लानिंग की आपको बात करनी है। ठीक है। परसेप्शंस, इसमें देखो साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट एंड जॉब फिट्स के पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन इन साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट क्या है? जो लोग फील करे, परसीव करे साइकोलॉजिकल सेफ्टी इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। और द पर्सन जॉब फिट, मतलब वो क्या, वो फिट है जॉब काम करने के लिए, जो स्किल सेट चाहिए। ठीक। तो ये जो पर्सनालिटी ट्रेड्स हैं वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपको जब भी सिलेक्ट करना हो, बिग 5, MBTI, है ना, जो आपने पढ़ा है फर्स्ट ईयर में, पर्सनालिटी, इसको यूटिलाइज करके सिलेक्ट करना। ठीक है। एटीट्यूड्स क्या है इंपॉर्टेंट है, देखो, पर्सनालिटी एटीट्यूड्स, है ना, परसेप्चुअल एट्रीब्यूट्स, क्रिएटिविटी। ठीक है। एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वर्क बिहेवियर, शॉर्ट टर्म प्लानिंग। तो ये जो है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिफरेंट एस्पेक्ट्स में, एनहांसिंग द बिहेवियर। ठीक है। परसेप्शन हो गई, क्रिएटिविटी हो गया, है। देन टाइप ऑफ वर्क बिहेवियर, वर्क प्लेस बिहेवियर, एक तो परफॉर्मेंस बिहेवियर है, एक डिसफंक्शनल बिहेवियर। यू हैव टू आइडेंटिफाई हु आर, हाउ मेनी एम्प्लॉइज, है ना, परफॉर्मेंस बिहेवियर है, एक्टिव है, और किसका डिसफंक्शनल। तो उसी हिसाब से आपको प्लानिंग बनानी है, स्ट्रेटेजी बनानी है, काम करनी, राइट। एंड शॉर्ट टर्म प्लानिंग एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म प्लानिंग में HR प्लानिंग एंड रिक्रूटमेंट प्लानिंग हो गई। देन एम्प्लॉय चॉइस प्लान, लाइक फ्लेक्सिबिलिटी प्लान, पार्ट टाइम, जॉब शेयरिंग। ठीक है। तो एम्प्लॉय चॉइस प्लान क्यों है? क्योंकि ये मोटिवेट, फ्लेक्सिबिलिटी देता है, फ्रीडम देता है, फ्लेक्सिबिलिटी, पार्ट टाइम, जॉब शेयरिंग, वर्क फ्रॉम होम, जैसे हम कर रहे हैं अभी, टेली कम्युनिकेटिंग। ठीक है। तो इस तरह की चीजें आपको फैसिलिटेट करती है ऑर्गेनाइजेशंस में एम्प्लॉय को मोटिवेट करने, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स। ठीक है। तो दिस कैन बी इनटू द प्लानिंग, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जो करेंगे, उसमें हमें नीड आइडेंटिफाई करना है एम्प्लॉय का। ठीक है। क्या उसको रिक्वायरमेंट है, क्या है, उस हिसाब से यू कैन प्लान। ठीक है। नाउ फोर्थ यूनिट के अंदर शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स इन ह्यूमन रिसोर्स, बेसिकली ट्रेनिंग की बात कर रहा है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की बेस पे यू नीड टू प्रोवाइड द ट्रेनिंग। तो कौन कौन सी ट्रेनिंग मैंडेटरी है, कौन सा बाद में कर सकते हैं? जैसे क्रॉस कल्चरल ट्रेनिंग मैंडेटरी है, डाइवर्सिटी, टीम ट्रेनिंग, है ना। तो कुछ एक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं जिसको नीड बेस्ड और मैंडेटरी बेस्ड हमें उसको ट्रेनिंग रेगुलर इंटरवल पे देनी चाहिए। तो ये सब भी चीजें ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के दौरान आपको आएगा। ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करेंगे तो ये सब चीजें आपको नजर आएगा, एंड यू विल डू बेटरली थ्रू दिस प्लानिंग एंड एवरीथिंग। ठीक है। तो इसमें क्रॉस कल्चरल हो गई, डाइवर्सिटी हो गई, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग हो गया। ठीक है। टीम बिल्डिंग हो गई। हाँ, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है। देन इमोशनल इंटेलिजेंस इन टीम, यहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस की बात कही है, असर्टिव ट्रेनिंग, इंटरपर्सनल ट्रेनिंग, है ना। देन सिक्स सिग्मा इंटरवेंशन इन ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशंस, राइट। सिक्स सिग्मा बेसिकली काइंड ऑफ जो ऑपरेशन मैनेजमेंट में यूज होती है। ठीक है। कैसे क्वालिटी कंट्रोल हम उसको डेवलप करें। ठीक है। तो उसको आप अच्छे से पढ़ना डिटेल्स। ठीक है। सिक्स सिग्मा के अंदर वो चीजें दे रखा है। तो कहने की ये है कि जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जो है, आपको इट विल हेल्प यू टू इंक्रीज योर ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल और इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी इन बेटर वे। ठीक है। जैसे आपको यहाँ पे और भी लिखा है, देखो, मार्केट फ्लेक्सिबिलिटी एंड कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस। ठीक है। उसको यूज करना है। मैनेजिंग एंगर,
ठीक है, एंगर कैसे, बहुत सारे लोगों को डेविएंट बिहेवियर होता है तो उसको कैसे मैनेज करना है, देन टाइम मैनेजमेंट आपको देखना है। ठीक है, तो ये सब चीजों को आपको ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के थ्रू नजर आएगा, देखेगा। ठीक है, तो इट इज ऑल अबाउट यूनिट 1, 2, 3 एंड 4। आप इसको पढ़ लेना। कल नेक्स्ट क्लास में कोई डाउट है, सो टुमारो वी कैन डिस्कस अगेन। ठीक है, इफ देयर इज एनी डाउट, एंड ऑल्सो यू स्टडी ब्लॉक 2 ऑल्सो। ठीक है, उसको भी आप पढ़ के आना। कोई डाउट है, कुछ है, आप मेरे को पूछ सकते हो, कोई भी क्वेश्चन से पूछ सकते हो। ठीक है, और ठीक है, कोई डाउट है तो बताइए अब। So this is unit block 1 from my side. If there is any doubt, any question, you can ask. सर एक क्वेरी है सर, हम्म, जैसे जब ये जैसे एचआर, हमारे एचआर मैनेजमेंट में हम अप्रेजल भी एक पार्ट रखते हैं। हम्म, तो सर अप्रेजल जैसे हर एम्प्लॉय की एफिशिएंसी कहीं ना कहीं अलग होते हैं, सब सेम तो नहीं हो सकते। हम्म, तो अगर हम उस टाइम पे हम जैसे इन केस दैट पर्सन जो भी, जैसे उनको, जैसे आपने बताया जितना भी उनको काम अलॉट हुआ है या केआरए जो भी डिफाइंड है वो तो हम्म, कंप्लीट हुए, but the हम्म, management is feeling that the person can do little more than this। हम्म। मतलब उसकी एफिशिएंसी कंपैरेटिवली उस जो काम अलॉटेड है या जो उसको डेजिग्नेशन अलॉट है उससे थोड़ा ज्यादा। तो सर उस केस में ये अप्रेजल के टाइम पे उसको ये चीज हम उसको मतलब कर सकते हैं, एक तरह से उस एम्प्लॉय को कि यू कैन गो फर्दर, तो उस बेस पे उसको इवेलुएट किया जाए, या फिर हम उसको किस स्टेप पे हम उसे ये बोलें कि आपको और एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम देना चाहते हैं। ये तो बोल, आप एक कॉन्सेप्ट है जॉब डिजाइन के अंदर, जॉब एनलार्जमेंट। ठीक है ना, तो जॉब जो आप काम कर रहे हो तो जॉब एनलार्जमेंट भी तो होती है ना, तो आप बढ़ाते जाइए काम। ठीक है। सर बट जैसे इंडिविजुअल है हम्म। वो मतलब मेंटली मीन साइकोलॉजिकली ही फील्स कि वो नहीं केपेबल है वो करने के लिए, तो सर तो उस टाइम पे हाँ। हाँ, हर इंसान हर काम करने के लिए कैपेबल नहीं है, इट इज एब्सोल्युटली राइट। तो आपको देखना पड़ेगा उसका कोर कॉम्पिटेंसी क्या है। ठीक है, जैसे बहुत सारे लोग, कोई एनालिटिक में अच्छा है, कोई रिसर्च में अच्छा है, कोई कम्युनिकेशन में अच्छा है। ठीक है, तो आप उसी हिसाब से काम को अलाइन करनी है, डिवीजन ऑफ वर्क करनी है। ठीक है, कोई, आप ये बताओ, एक डॉक्टर क्या सारे कर सकता है? कोई न्यूरो सर्जन अलग है ना, हार्ट की सर्जन अलग है, फिजिशियन अलग है, डेंटिस्ट अलग है। आप डेंटिस्ट को कहोगे मैं हार्ट की प्रॉब्लम ठीक कर दो, कर देगा क्या? नो सर। तो ऐसे ही है ना। तो हर कोई का स्किल सेट अलग है, हर किसी का संस्कार अलग है, हर किसी का नॉलेज कैपेसिटी अलग है, लर्निंग स्टाइल अलग है। लेकिन हर एक के अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, काम करने की जो स्किल सेट चाहिए वो है, बिहेवियरल कॉम्पिटेंसी है, प्लस हमें उसको सिखाना है। अगर नहीं है तो भी तो हम डेवलप करा सकते हैं, प्लस ट्रेंड करा सकते हैं कोई चीजों में। और हमें अगर बेटर होगा, हमें उसको उसकी कोर कॉम्पिटेंसी के हिसाब से हम अगर काम देते हैं तो बेटर रिजल्ट आएगा, नतीजा। उसका भी मन लगा रहेगा उसमें काम करने में। ओके सर, थैंक यू। अगर कोई मार्केटिंग गाई है और फिनांस की बंदा है, टिपिकली इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी, और मैं कहूंगा तुम सेल्स करो जाके, डोर टू डोर, B2B, या कस्टमर टू कस्टमर, C2C, तो नहीं करेगा, वो इंटरेस्ट ही नहीं लेगा, कहा मेरे को नहीं चाहिए। लेकिन हिंदुस्तान में इतना जनसंख्या है ना, पॉपुलेशन इतना है, अनएम्प्लॉयमेंट इतना है, तो मजबूरी में लोग करते हैं पैसों के लिए। तो वो तो होगा ही, चलता रहेगा ऐसे, कोई दिक्कत नहीं। हिंदुस्तान में कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे। स्किल्ड लोग कम है, सेमी स्किल्ड लोग थोड़ा सा ज्यादा है, अनस्किल्ड ज्यादा है। ठीक है, थैंक इसीलिए। यू। थैंक यस, एनी अदर क्वेश्चन?
और कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है? हेलो. यस. एनी अदर क्वेश्चंस? सर सर ये इसका नेक्स्ट सेशन जो हमारा होगा सर अभी, वो कितने बजे से सर हम लॉग इन करें सर? कौन सा सेशन? सर अभी ये जो 12 to 2 वाला था, इसके बाद सर एक और है एक और है? सर, एक मिनट सॉरी। ओके सर, सॉरी, ये कल का है ये वाला। हाँ, कल होगा ये कल। जो एमपी, हाँ कल है, शनिवार रविवार है। और इन केस जैसे मेरा मान लो वर्किंग सैटरडे में मेरे को बिजी होता है कहीं पे भी, एक ग्रुप बना लेना, मेरे को भी ऐड कर लेना। तो हम लोग, अगर मैं सुबह टाइम नहीं दे पाया तो इवनिंग में हम शेड्यूल कर लेंगे क्लास को, ठीक है? यस सर। तो मैं बता दूंगा जैसे भी होगा। और ऐसे ही मीटिंग ज्वाइन करने के बाद बता दूंगा, अगर मेरे पास काम है और और अचानक अर्जेंटली कुछ आ जाए तो मैं इवनिंग में उसको कवर करूंगा, ठीक है? इवनिंग 7 to 9 ऐसे कुछ, ठीक है? वो कभी कभी सैटरडे का होगा, जो वर्किंग सैटरडे हो या मेरे को अचानक कुछ काम पड़ गई, राइट? एनीथिंग एल्स? एनी अदर डाउट? मैंने कोई वर्कशॉप ग्रुप नहीं क्रिएट किया, स्टूडेंट ने क्रिएट किया, स्टूडेंट से बात कर लीजिए प्लीज। किसी के पास है तो ग्रुप शेयर कर दीजिए लिंक। एनी अदर डाउट रिलेटेड टू द सब्जेक्ट कंटेंट? ओके, सो देयर इज, इफ देयर इज नो डाउट देन वी आर एंडिंग हियर, ठीक है? हम सेशन बंद कर रहे हैं, तो ठीक है। ओके, सी यू देन टुमारो फॉर द सेम क्लास, ठीक है, 10 o'clock। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, बाय बाय। बाय बाय एवरीवन, बाय बाय।